So, hi everyone. In the last class, we are discussing about the court to which the petition shall be presented, and we have also discussed about the contents and verifications of the petition. And in the today's class, under section 21A, we'll discuss the power to transfer petitions in certain cases. Okay. So, under that, we have understood when there is the matter about the transfer of the petitions from one court to another, then how it actually works, like what is the proper procedure for the transfer of the petitions in certain cases. Okay, so in the first clause 1 we have discussed where a petition under this act has been presented in the district court having jurisdiction by a party to a marriage praying for a decree of the judicial separation under section 10 or the decree of divorce under section 13, and another petition under this act has been presented thereafter by the other party to the marriage uh, under the same, like the under section 10 of the divorce judicial separation and section 13 of the divorce, where the same district court or different district court in the same state or in the different in the different state. तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था? पहला चीज कि अगर there are the two parties to the marriage, one is the husband, another is the wife. Okay, so मान लो the husband and wife they are not agreeing to stay with each other. So दोनों each they have filed the petition against each other. That means the husband has filed a petition against the wife and the wife has also filed a petition against the husband. तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट पिटिशन फाइल किए हुए हैं. ओके, सो हमने जो यहाँ पे पढ़ा था when it talks about section 10 of the judicial separation or decree of divorce under section 13, what does it specifically means? It specifically means when both the parties don't want to stay with each other, either husband or the wife, they are living at a same place or different place. For example, I am staying at Bhubaneswar, Odisha. Okay. So मान लो my husband is also staying at the same location, but we don't want to stay with each other. So Bhubaneswar goes under the district of Khurda, Odisha. So यहाँ पे the court, the district court of the Bhubaneswar is the same for both of us. So we have already discussed that the decisions regarding the marriage, the marital divorce, the decision related to marriage, divorce, and all these things, that is being dealt in the marital court, like the family court, and the district court is called the family court itself. मतलब the marital matters that is considered as the civil, that comes under the civil jurisdiction. So it is usually filed in the district, the family court, that is the session court itself. Okay, that is what we have already discussed. So if me and my husband are living at the same location, we both are staying at the same locality together, but what is happening that we both are filing the petition for the divorce against each other at the same district court. आइदर हम लोगों ने एक ही लोकेशन पे रह रहे हैं एंड एक दूसरे के अगेंस्ट सेम लोकेलिटी पे पिटिशन फाइल किए हुए हैं, या फिर दूसरा सिचुएशन क्या हमने डिस्कस किया था, वी बोथ आर स्टेइंग सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. इफ आई एम स्टेइंग एट ओडिशा, he is staying at Delhi, but we don't want to stay with each other and we have filed for the judicial separation as well as for the divorce. Okay, सो मैंने भुवनेश्वर कोर्ट पे जहां पे मैंने फाइल किया है पिटिशन कि आई डोंट वांट टू स्टे विथ माय हस्बैंड, वहां पे माय हस्बैंड आल्सो फाइल्ड ए क्रॉस पिटिशन अगेंस्ट मी दैट माय वाइफ इज डूइंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और द क्रुएल्टी अगेंस्ट मी, सो आई वांट डिवोर्स फ्रॉम माय वाइफ. एंड उसके लिए व्हाट माय हस्बैंड इज डूइंग, ही हैज फाइल्ड ए पिटिशन एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली. ओके, ही इज स्टेइंग एट दिल्ली नाउडेज. तो वो क्या किए हैं ना, वो दिल्ली का हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे पिटिशन फाइल किए हैं. सो ये हो गया आपका दोनों सिचुएशन जहां पे मैंने आपको बताया, आइदर एट द सेम कोर्ट और एट द डिफरेंट कोर्ट.
सेम कोड का मतलब क्या होता है? एक ही लोकेलिटी पे सिमिलर कोड पे अगर पिटिशन फाइल होता है तो उसको बोलते हैं सेम कोड। अलग अलग कोड क्या होता है? अगर दोनों स्पाउस में दोनों दोनों से अलग अलग लोकेशन पे रह रहे हैं and they are filing petition against each other at the different jurisdictions, then that will be called as the different courts. Okay. So when this is the situation, when the petition is filed at the same court or the different court, then what will happen? Then both the petitions shall be tried and heard together by the district court if it is presented at the same court. अगर petition सेम कोर्ट पे फाइल हुआ है then it will be heard the petition shall be tried and heard together by the district court. Okay, petition का क्या होगा? It will be मतलब tried and heard together by the district court. इसका मतलब जो भी है ट्रायल होगा एंड इसी को जो भी द हियरिंग होगा पिटिशन का बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बाय द सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे दोनों पार्टी अगर फाइल किए हुए हैं तो दोनों का प्रोसीडिंग्स अलग अलग नहीं होगा, एक साथ ही होगा, क्योंकि दोनों का जो क्लेम का कंटेंट है ना वो सेम ही है। पति ने अपने पत्नी से चाहती है कि मैं अपने पत्नी के साथ नहीं रहूंगी, आई वॉन्ट रिलीव फ्रॉम माई वाइफ। एंड सेम विद द हस्बैंड, हस्बैंड ये बोल रहा है कि मुझे अपने पत्नी से छुटकारा चाहिए, आई वॉन्ट रिलीव फ्रॉम माई वाइफ, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे विथ माई वाइफ। सो दोनों का कंटेंट ऑफ द जो पिटिशन है ना वो एक ही है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। दैट इज इट, दैट इज द कंटेंट ऑफ द पिटिशन and it is the discrimination of the parties that what are their grounds for the divorce। अगर वो एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उनका ग्राउंड क्या है? वो ग्राउंड अलग अलग हो सकता है, द ग्राउंड माइट बी डिफरेंट, बट उनका इंटेंशन तो एक ही है ना। उनका जो लीगल क्लेम किए हैं दैट इज फॉर ओनली वन रीजन, दैट दे डोंट वांट टू स्टे विथ ईच अदर, सिंपल। So what will happen in these circumstances? Simple. The answer is very simple. In these circumstances, when both of the parties do not want to stay with each other, in that specific case, what will happen? The court will try and hear both of the cases together. कोर्ट क्या करेगा? दोनों पार्टी का जो हियरिंग है ना वो एक साथ ही करेगा। कोर्ट विल डू द हियरिंग टुगेदर। ये हो गया आपका पहला चीज। अगर दोनों पार्टी अलग अलग लोकेशन पे अपना पिटिशन फाइल किया है, मान लो द वाइफ हैज फाइल्ड द पिटिशन एट द भुवनेश्वर कोर्ट, फाइल द हस्बैंड हैज फाइल्ड द पिटिशन एट द अनदर कोर्ट, लाइक कहाँ पे वाइफ ने ओडिशा पे किया है, हस्बैंड ने दिल्ली पे किए हैं, तो वहां पे अगर दोनों का पिटिशन का कंटेंट सेम है तो ये देखा जाएगा कि व्हाट इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ द फाइलिंग ऑफ द पिटिशन। पिटिशन कहाँ पे पहले फाइल हुआ है? अगर पिटिशन फर्स्ट दिल्ली कोर्ट पे फाइल हुआ है देन द पिटिशन फाइल्ड बाय द वाइफ इज एट द ओडिशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेटर एंड फाइल हुआ है, पहले वाइफ ने फाइल किया है, देन दिल्ली वाला मैटर, दिल्ली वाला जो भी केस फाइल हुआ है दैट केस विल बी ट्रांसफर टू ओडिशा एंड दैट विल बी हर्ड टुगेदर। यहाँ पे भी हियरिंग एक साथ ही होगी, हियरिंग विल बी डन टुगेदर ओनली, बट बस लोकेशन अलग अलग होगा। मतलब जैसे कि आपका अगर दोनों पार्टी का लोकेशन अलग अलग है तो पहले जिस पार्टी ने पिटिशन फाइल की है, फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 4 अक्टूबर, मैंने आज पिटिशन फाइल कर दिया, मेरा हस्बैंड ने 5 अक्टूबर को पिटिशन फाइल किया है, तो उन्होंने जिस लोकेशन पे पिटिशन फाइल किया हुआ है वहां से उनका पिटिशन ट्रांसफर होगा टू माई लोकेशन। अगर मैंने बाद में करता तो मेरा पिटिशन भी मेरा जो भी क्लेम है, माई फाइलिंग ऑफ द पिटिशन विल बी ट्रांसफर टू हिज लोकेशन। सो इट एग्जैक्टली डिपेंड्स कि कौन पहले फाइल कर रहा है।
हु इज फाइलिंग एट फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस इसको बोलते हैं. ओके, व्हाट इट सेड, if the petitions are presented to different district courts, the petition presented later shall be transferred to the district court in which the earlier petition was presented. Okay, and both the petitions shall be heard and disposed of together by the district court in which the earlier petition was presented. Okay, done. Next point, section 21B. Special provision relating to trial and disposal of petitions under this act. Okay, so what does it mean? It means the special provisions related to the trial and disposals of the petitions under this act. So what are the specific provisions related to that? Let's understand this. The trial of a petition under this act shall, so far as is practicable consistently with the interest of justice in respect of the trial, be continued from day to day until its conclusion, unless the court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded. So what does it mean? It means when the trial of a petition under this act shall be, so far as is practicable consistently with the interest of the justice in respect of the trial. That means with the interest of the justice, it is continuing in respect of the trial. That means यहाँ पे अगर कोई पिटिशन फाइल हो रहा है in respect of the trial with the respect of the in the interest of the justice, this is continuing day to day. Be continued from day to day only its conclusion until the court finds the adjournment beyond the following day is necessary for the reasons to be recorded. Okay, adjournment का क्या मतलब होता है? Adjournment मतलब either the dismissal of the case or the final hearing of the case. केस का एडजर्नमेंट हो गया मतलब उसका जो भी था फाइनल डिसीजन का हियरिंग हो गया, उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट. ओके, समझ में आया? So until and unless there is the adjournment of the cases, तभी तक डे टू डे बेसिस पे केस का हियरिंग होता रहेगा. बट यूजुअली आप तो देखते हैं ना, आप ये बात पूछेंगे कि ऐसा होता है कि हमेशा तो केस का हियरिंग डे टू डे बेसिस पे नहीं होता. यहाँ पे लिखा गया है कि अप टू द डे टू डे बेसिस. डे टू डे बेसिस का मतलब ये होता है कि अगर आज पिटिशन का हियरिंग आधा कंप्लीट होता है, बाकी का हियरिंग कल होगी, उसके अगले दिन और बाकी का हियरिंग होगी. जब तक उस मैटर का फाइनल एडजर्नमेंट नहीं हो जाता तब तक ये चीज कंटिन्यू करती रहेगी. बट कोर्ट के पास ना एक केस नहीं होता है. कोर्ट इज हैविंग thousands of the cases, है ना? So when a court is having thousands of the cases, it is impossible on behalf of the court to continue a specific case on the day to day basis. ये पॉसिबल ही नहीं होता है. तो कोर्ट में क्या होता है कि अगर आज का डेट पे एक केस फाइनल होता है, एक केस का लास्ट हियरिंग होता है, तो उसी का नेक्स्ट हियरिंग 10 दिन बाद 15 दिन बाद शेड्यूल किया जाता है ना? एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21B, यहाँ पे जो भी शेड्यूल होगा केस का वो ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए. एंड जो कि हमने पहले से इस बात को पढ़ चुके हैं दैट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और इन द परफॉर्मेंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, द ड्यूरेशन ऑफ द आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द डिवोर्स, ये पिटिशन जब से फाइल होता है 6 महीने का टाइमलाइन कोर्ट देता है दोनों पार्टी को फॉर द काउंसिलिंग. अगर if the parties are already staying together from more than 1 year with each other, वो एक दूसरे से 1 साल से ऑलरेडी अलग रह रहे हैं, तो वो सिचुएशन अलग है. वहां पे कोर्ट कुछ भी ज्यादा छानबीन नहीं करेगा. कोर्ट विल सिंपली ग्रांट द डिवोर्स टू द पार्टीज. ओके, बट मान लो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि कोर्ट हैज गिवन द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ. कोर्ट को यहाँ पे लगा कि यहाँ पे पति जो है वो अपने पत्नी से डिवोर्स चाहता है, बट पत्नी अपने पति से डिवोर्स नहीं चाहती है. सो हियर द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ इज ग्रांटेड. 6 महीने पे दोनों का काउंसलिंग होगा.
कोर्ट विल ट्राई देयर बेस्ट कि पति को कन्विंस कर ले, पति को समझा दे कि व्हाट इज द रीजन दैट उसको डाइवोर्स लेना है। अगर काउंसलिंग के थ्रू दोनों का मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है, दोनों एक नया जिंदगी शुरू कर सकते हैं, देन दैट इज गुड फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज। अगर ऐसा लगता है कोर्ट को कि नहीं, यहाँ पे दोनों पार्टी को समझाने का कोई भी मतलब नहीं है, दे आर अनेबल टू स्टे विथ ईच अदर, वो दोनों तो एक दूसरे के साथ झगड़ ही रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ वो कभी साथ नहीं रह पाएंगे, दिस इज इम्पॉसिबल बाय द पार्टीज। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इन दैट केस कोर्ट विल गिव देम द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा, देन द कोर्ट विल ग्रांट द डिवोर्स। कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा? डिवोर्स ग्रांट कर देगा। ये हो गया आपका पहला क्लॉज, है ना। एंड हमने इस बात भी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि मैक्सिमम कोर्ट कितना टाइम ले सकता है? 18 मंथ। मिनिमम कितना हो सकता है? 6 मंथ। तो आपका जो ड्यूरेशन होता है वो मिनिमम होता है 6 मंथ, मैक्सिमम होता है 18 मंथ। 18 मंथ मतलब 1.5 साल। ओके। मैक्सिमम ए केस कैन बी ए मैरिटल और डिवोर्स केस that can extend maximum the period of 1 year और 18 मंथ, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। उसके बाद डिवोर्स ग्रांट करना मैंडेटरी है, इट इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये समझ में आ गया आप लोगों को? उसका क्लॉज 2 क्या बोलता है? एवरी पिटिशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड एज एक्सपेडिटियसली as possible and endeavors shall be made to conclude the trial within 6 months from the date of service of the notice of the petition on the respondent. So यहाँ पे क्या बोला? Every petition under this act shall be tried as expeditiously as possible and endeavors shall be made to conclude the trial within 6 months from the date of service of the petition टू द रेस्पोंडेंट। यहाँ पे जब मैं कोई केस पे कोर्ट पे कोई केस फाइल करती हूँ तो वहां पे क्या होता है? रेस्पोंडेंट जो होता है ना, उसके पास एक नोटिस इशू होता है, एक नोटिस सर्व होता है कि आपके अगेंस्ट ऐसा ऐसा एक केस फाइल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव फाइल्ड ए पिटिशन ऑफ द डिवोर्स अगेंस्ट माई हस्बैंड। तो आगे क्या होगा? मेरे हस्बैंड के पास एक नोटिस इशू होगा ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट रिगार्डिंग द केस फाइल्ड बाय मी, कि आपके वाइफ आपके अगेंस्ट ऐसा ऐसा केस फाइल किया है, तो यू शुड अपीयर इन द कोर्ट फॉर योर डिफेंस। ओके, माय हस्बैंड बिकेम द रेस्पोंडेंट ओवर हियर, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द डेट ऑन व्हिच द नोटिस has been issued to the husband, जिस डेट पे रेस्पोंडेंट को नोटिस इशू किया गया है, उसी डेट से 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर द मैटर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। जिस दिन पे रेस्पोंडेंट को नोटिस सर्व कर दिया गया, वहां से एग्जैक्ट 6 महीने के बीच द मैटर शुड बी sorted out, the matter should be properly closed. ओके, तो ये हो गया आपका क्लॉज 2। मिनिमम ड्यूरेशन होता है 6 महीना और मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होता है? 18 महीना, याद रखिएगा। गया। थर्ड पॉइंट, एवरी अपील अंडर दिस एक्ट shall be heard as expeditiously as possible and endeavor shall be made to conclude the hearing within 3 months from the date of the service of notice of the appeal on the respondent. So what does it mean? It means when the appeal under this act shall be heard as expeditiously as possible, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ना डिवोर्स ग्रांट कर दिया टू द वाइफ, बट हस्बैंड इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। हस्बैंड बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो डिवोर्स फाइल होना ही नहीं चाहिए था, आई डिडंट वांट टू
लॉस्ट माई वाइफ, तो यहाँ पे मेरे वाइफ ने जो भी डिवोर्स का पिटिशन फाइल किया है उसको डिसमिस हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे मिस्टेकनली कोर्ट ने क्या किया, उसको डिवोर्स ग्रांट कर दिया। तो यहाँ पे द हस्बैंड हैज फुल एंड डिस्क्रिशन, हस्बैंड के पास पूरा डिस्क्रिशन है टू गो फॉर द अपील, क्योंकि ये उसका बेसिक राइट है। अगर उसको लगता है कि नहीं उसके प्रति इनजस्टिस हुआ है, वो डिसीजन पे खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, देन द हस्बैंड हैज होल राइट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके, तो यहाँ पे बात आता है व्हेन देयर इज द मैटर अबाउट फाइलिंग द अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, against the decision of the district court. How it will happen? It means when, for example, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे मामला सुलझ नहीं पाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन से आप खुश नहीं है, यू डोंट वांट डिवोर्स बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रांटेड यू द डिवोर्स, बट विद अ सफिशिएंट ग्राउंड कि यहाँ पे डिवोर्स ग्रांट क्यों नहीं होना चाहिए, यू शुड फाइल द अपील टू द हाई कोर्ट इटसेल्फ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सुपेरियर अथॉरिटी होता है वो कौन होता है, वो आपका हाई कोर्ट होता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप खुश नहीं हो, देन यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट, है ना। एंड व्हेन यू आर फाइलिंग द पिटिशन एट द हाई कोर्ट, द हियरिंग शुड डन एक्सपीडिशियसली, दैट मीन्स बहुत जल्दी होना चाहिए, एंड conclude the hearing within 3 months from the date of service of notice of appeal to the respondent. That means देखो क्या होता है ना, for example, I am the person, I am the petitioner, my husband is the respondent. So my husband is not happy with the decision of the court. तो उन्होंने क्या किया, he filed an appeal in the high court, okay, against the decision of the district court. So when he filed an appeal in the high court, who became the appellant? My husband became the appellant. So in the first case, I was the petitioner, he was the respondent. But in the second case, he is the appellant and I am the respondent. So when it is the situation like I am the respondent over here, क्योंकि मैं पहले petitioner थी, डिसीजन आ गया, मेरे फेवर में आया, मेरे पति को उस डिसीजन खुशी नहीं दी, ही इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट, तो उन्होंने क्या किया, ही ऑब्जेक्टेड द पिटिशन इन द हाई कोर्ट इटसेल्फ, उन्होंने हाई कोर्ट पे ये पिटिशन ऑब्जेक्ट कर दिया। तो जब उन्होंने हाई कोर्ट पे अपील फाइल किया है, देन हु बिकेम द अपेलेंट, माय हस्बैंड। यहाँ पे रेस्पोंडेंट कौन हुआ, मैं हुआ। नोटिस किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा। क्या नोटिस आएगा, ये नोटिस आएगा कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन हुआ था ना, उसी के अगेंस्ट किसी अपील फाइल किया गया है इन द हाई कोर्ट, एंड यू आर द पर्सन हु इज द रेस्पोंडेंट ओवर हियर। यहाँ पे अपील फाइल होने के बाद आप यहाँ पे रेस्पोंडेंट बन गए हैं। सो आफ्टर रिसीविंग ऑफ द नोटिस टू द रेस्पोंडेंट, दैट मीन्स आफ्टर रिसीविंग द नोटिस बाय मी, 3 महीने के अंदर ये मामला का सुलझना बहुत जरूरी है। इन बिटवीन 3 days दिस मैटर शुड बी सॉर्टेड, दिस मैटर शुड बी सॉर्टेड, ओके। सो 3 महीने के अंदर क्या होगा, द कोर्ट विल क्रॉस वेरीफाई द रिजल्ट, कि कोर्ट देखेगा कि हाई कोर्ट ये चेक करेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिया है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन अच्छा लगता है हाई कोर्ट को, ही विल कंटिन्यू विद द पिटिशन, वो बोलेगा कि नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जो बोला है वो सही सही चीज बोला है, एंड यू हैव टू गेट द पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, मतलब आपको डिवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा बिकॉज देयर आर द प्रेजेंस ऑफ द सफिशिएंट ग्राउंड। या फिर कोर्ट ऐसा बोलेगा कि नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो बोला है वो सही नहीं बोला है, दिस इज नॉट द राइट थिंग, वी आर नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। जो भी होगा कुछ एक तो जरूर होगा ना, राइट। सो यहाँ पे बोला जाए तो आफ्टर द अपील, जिस डेट पे अपील किया जाता है, ये माना जाता है कि अपील के बाद 3 महीने के अंदर
जो कुछ भी है आफ्टर द सर्विस ऑफ द नोटिस टू माई सेल्फ, after the service of the notice to the respondent, there should be the duration of 3 months. 3 महीने के अंदर मैटर का समाधान हो जाना बहुत जरूरी होता है. Got it? Then the next point, section 21C speaks about the documentary evidence. What do you mean by the documentary evidence? So the next point आता है आपका section 21C. It speaks about the documentary evidence. So what do you mean by the documentary evidence? So what does it mean? Notwithstanding anything in any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the trial of the petition under the Act on the ground that it is not duly stamped or registered. पहला चीज अंडर सेक्शन 21B हमने ये चीज डिस्कस किया कि अगर कोई भी डिवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन का केस फाइल होता है तो नोटिस इशू होने का 6 महीने के अंदर मामला का डिस्पोजल हो जाना बहुत जरूरी होता है. ये हो गया आपका पहला चीज. दूसरा चीज क्या हुआ कि अगर मामला का अपील होता है, इफ देयर इज द अपील ओवर देयर, तो अपील पे क्या होता है, अपील होने का 3 महीने के अंदर मामला का डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है. तो पहला 2 चीज आप ध्यान में रखिएगा. पिटिशन जिस डेट पे फाइल हुआ उसके बाद एक नोटिस जाता है टू द रेस्पोंडेंट. नोटिस जाने का 6 महीने के अंदर मामला रफा दफा हो जाना चाहिए. और अगर नोटिस चला गया है, डिसीजन भी आ गया, डिसीजन आने के बाद अपोनेंट पार्टी अपील करता है इन द हायर कोर्ट और इन द हाई कोर्ट. सो अपील करने का 3 महीने के अंदर उस अपील का भी जजमेंट आ जाना बहुत जरूरी है. ओके, गॉट इट. Then the next point, section 21C speaks about the documentary evidence. And according to the documentary evidence, we have understood that no document shall be inadmissible in evidence just because it is not duly stamped or registered. That means during the divorce proceeding or during the judicial separation, there are a lot of documents has been presented. Okay. For example, your husband is torturing you. Your husband is mentally and physically harassing you. Okay. And all these things has been recorded in a specific camera or specific voice note. Okay. तो ये हुआ है कि आपका हस्बैंड ने जब भी आपको मारपीट करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, आप उसी को छुपा के किसी भी तरह का उसी का रिकॉर्डिंग बना लिया है. एंड यू वांट टू शो इट एज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू द कोर्ट ऑफ लॉ. आप उस चीज को कोर्ट ऑफ लॉ में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के हिसाब से दिखाना चाहते हो. एंड आपको डर है कि अगर आप पहले से कोर्ट को इस सबूत के बारे में बता देते हो कि दैट यू आर हैविंग ए वीडियो प्रूफ ऑफ दिस, देन देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. बिकॉज योर ओपोनेंट पार्टी इज टू पावरफुल एट दिस टाइम. ओपोनेंट पार्टी थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसका फैमिली बैकग्राउंड है, तो वो अगर चाहेगा तो वो क्या करेगा ना, मैटर को मतलब ही कैन एलिमिनेट द एविडेंस इटसेल्फ. तो अगर वो चाहता है तो एविडेंस को एलिमिनेट कर देगा, वो एविडेंस को मिटा देगा. तो इसीलिए आपने क्या किया कि आपके पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसी को आपने छुपा के रखा. एंड यू डिस्क्लोज्ड द एविडेंस एट द टाइम ऑफ द हियरिंग डायरेक्टली. जिस टाइम हियरिंग चल रहा था तभी आपने डायरेक्ट ये चीज को डिस्क्लोज किया है. देन इन दैट स्पेसिफिक केस व्हाट विल हैपन? In that specific case, this will happen that when there is the disclosure of the evidence in the hearing procedure, it should be accepted as the lawful and valid evidence. Okay? And just because it is not registered or duly stamped, it cannot be entertained. It is totally wrong. Got it? So what does it mean?
इट मीन्स सिंपल लैंग्वेज पे समझे तो अगर किसी भी तरह का एविडेंस है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट है जिसी को रजिस्टर नहीं किया गया है, जिसी को स्टाम्प नहीं किया गया है, then the just on the ground that it is not duly, the document is not duly stamped or registered, just because the reason कि ये जो document है वो duly stamped नहीं हुआ है, duly registered नहीं हुआ है, this will not be admissible as the evidence. This is a wrong thing. This will be admissible as the evidence itself. तो ये हो गया आपका documentary evidence under section 21C. Okay. सो सेक्शन 21C पे हमने क्या सीखा? ये सीखा कि इवन इफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट ड्यूली स्टाम्प्ड और रजिस्टर्ड, इवन इफ डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्टाम्प नहीं किया गया है एंड रजिस्टर नहीं किया गया है, स्टिल दैट विल बी एक्सेप्टेड एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट, दैट विल बी एक्सेप्टेड एज द वैलिड एविडेंस इन द मैरिटल केसेस. All the evidence, all the documentary proofs need not to be registered, need not to be stamped as always. ये हो गया आपका section 21C. Okay. Section 22 speaks about the publication of the proceedings. So क्या बोलता है? Proceedings to be in camera and may not be printed or published. So what does it mean? It means simply समझ लेते हैं इसको. अगर किसी भी तरह का प्रोसीडिंग्स होता है, किसी भी तरह का मैरिटल कोर्ट प्रोसीडिंग, दैट इज नॉट अलाउड टू बी पब्लिश्ड थ्रू द प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको किसी भी तरह का पब्लिकेशन करने का इजाजत कोर्ट नहीं देती है. ओके, ये हो गया आपका सेक्शन 22. बट इफ इट इज द proceeding of the High Court and the Supreme Court, then with the due permission of the High Court और Supreme Court, High Court का या Supreme Court का अगर अच्छी तरह से परमिशन है, if they are agreeing with this कि हाँ ठीक है आप ऐसा कर सकते हो, then in that specific case only the publication of those printed और पब्लिश डॉक्यूमेंट्स इज अलाउड. जैसे कि आप लोगों का अभी ऑनलाइन मोड पे हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग का डायरेक्टली लाइव हियरिंग होता है. सो दैट इज विद द ड्यू परमिशन ऑफ द कोर्ट. वहां पे कोर्ट का पूरा परमिशन होता है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो. बट इफ देयर इज नो परमिशन ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे अगर कोर्ट का परमिशन नहीं होता है, देन इट इज नॉट अलाउड टू डू दैट. अगर ऐसा कोई करता है, दैट पार्टी विल बी पनिशेबल फॉर दैट स्पेसिफिक एक्ट. ऐसा करना गलत है, इसको गलत माना जाता है. और लोअर कोर्ट का तो प्रोसीडिंग किसी भी हाल पे आउट करना अलाउड नहीं है. अगर अलाउड है तो बस हायर कोर्ट का, सुपेरियर कोर्ट का, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, आपका मतलब सॉरी सुपेरियर कोर्ट मतलब जैसे कि आपका हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बस उन लोगों का ही प्रोसीडिंग को पब्लिश किया जा सकता है. दैट थ्रू विद द स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट का बिना स्पेसिफिक परमिशन के बिना ऐसा प्रोसीडिंग आगे नहीं हो सकता. ये हो गया आपका सेक्शन 22. एंड अगर ऐसा कोई करता है, देन ही विल बी पनिशेबल विथ फाइन व्हिच माइट एक्सटेंड टू 1000 ऑफ द रुपीज. बट अभी तो उसी के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट का भी पनिशमेंट दिया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रीचिंग ऑफ द प्राइवेसी. ओके, ये हो गया आपका सेक्शन 22. सेक्शन 23 बोलता है डिक्री इन प्रोसीडिंग्स. ओके, जो कि हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे. Section 23A speaks about relief for respondent in divorce and other proceedings. So what is the relief of the respondent in the divorce proceeding? When in the proceeding for a divorce or judicial separation or restitution of the conjugal rights, the respondent may not only oppose the relief sought on the ground of petitioner's adultery, cruelty or desertion, but can also make the counter claim for any relief under this act on that ground. And if the petitioner's adultery, cruelty or desertion is proved, the court may give to the respondent any relief under this act
to which he or she would have been entitled of had presented the petition seeking such relief on the ground. So यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर किसी भी तरह का प्रोसीडिंग है एंड उसी पे रेस्पोंडेंट को रिलीफ चाहिए, then the respondent can object the claim of the petitioner. यहाँ पे petitioner अगर ये क्लेम कर रहा है कि the respondent has done the cruelty or violence to her, then the respondent can object it, and the respondent can also do the काउंटर क्लेम मतलब वो वापस से पिटिशनर के ऊपर एलिगेशन लगा सकता है, बोल सकता है कि नहीं यहाँ पे मेरे बीवी जो मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं ना कि मैं उसी को अगेंस्ट क्रुएल्टी किया हूँ, उसी को मारा हूँ, पीटा हूँ, ये गलत है। उल्टा मैं यहाँ पे ये कंप्लेन करना चाहता हूँ कि मेरा बीबी ने मेरे साथ गलत किया है, शी इज हैविंग द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो कि बहुत गलत है, एंड दैट इज वाई उसी ने मेरे साथ मेंटल क्रुएल्टी किया है। दिस इज कॉल्ड द काउंटर क्लेम। अगर आपको कोई ब्लेम कर रहा है तो आप उसी को उसी के तरीके से क्रॉस ब्लेम कर रहे हो। अगर वो बोल रहा है कि आपने उसी के साथ गलत किया है तो आप भी उसी को बोल रहे हो कि आप मुझे क्या बोल रहे हो, आपने भी तो मेरे साथ वही गलत किए हो ना। सो दिस इज इक्वल इक्वल। अगर मैं आपके साथ गलत किया हूं तो आपने भी तो मेरे साथ गलत किया है। तो दिस इज कॉल्ड द काउंटर क्लेम। पहला चीज ये है, आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हो। अगर वो बोलती है कि आपने उसी को मारा है, आप एविडेंस दिखा सकते हो कि नहीं मैंने उसी के ऊपर हाथ तक नहीं उठाया, आई हैव नॉट हर्ट हर, मैंने उसी को नहीं मारा। ये हो गया आपका पहला चीज। इसी को बोलते हैं डिफेंस। आप अपने साइड से अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, अपने आप को, अपने जो कुछ भी ग्राउंड आपके अगेंस्ट दिखाया जा रहा है, यू हैव ऑल द राइट टू प्रूफ एवरीथिंग फॉल्स। आप सारी चीज को गलत प्रूफ कर सकते हो। ये हो गया आपका पहला राइट। दूसरा क्या होता है, अगर आपके अगेंस्ट आपके वाइफ किसी भी तरह का क्लेम कर रही है तो आप उसी के अगेंस्ट काउंटर क्लेम कर सकते हो कि मेरे वाइफ जो जो एलिगेशन मेरे अगेंस्ट लगा रखी है, अगर मैं चाहूं तो आई एम ऑल्सो डूइंग द सिमिलर एलिगेशन। मेरे वाइफ भी मेरे साथ इस तरह का मतलब जो कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल उसने मेरे 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 को मेंटल क्रुएल्टी की है, मेरे वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से वो मुझे धमकी देती है। सो दीज थिंग्स यू हैव ऑल द राइट्स टू डू द काउंटर क्लेम एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टू डिफेंड योर सेल्फ। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 23A। ओके, तो सेक्शन 24 25 speaks about the alimony, 26 speaks about the custody of the children, कि शादी के मतलब डिवोर्स के बाद या जुडिशियल सेपरेशन के बाद बच्चे का कस्टडी किसको जाएगा। तो ये सब के बारे में विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज इसी का जो अगले सारा सेक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, लाइक कस्टडी किसको जाएगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो ये सारी चीज विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। This is all for today. Wrapping up the class over here. Thank you so much. Bye bye.